Hello students, today we are here to complete all the important topics of maps class 10th which will occur in your board examination. This is a one shot video in which you will get the complete knowledge of all the topics whichsoever are coming in your examination, in your board examination related to maps. These are the maps of geography, and mostly the chances of occurring these topics are there in your examinations. So here we go. This is the map of India. You all must be aware of it, right? We will go topic by topic. Our first topic on maps are states on map. You are in 10th class. The chances of occurring these states on maps are very less in your class 10th, as they are of very small level, they are of very basic level. Yet if you don't know how to locate the basic states on the map of India, then further you cannot plot any of the point in the map. So first basic information is that how to locate states on map of class 10th. This is the map of India, right? If we get the knowledge about directions, then if this is the direction scale, then here it is north, here it is south, here it is east, and here it is west, according to compass, according to the direction scale. You must be aware since childhood, north, south, east, west. Same is the criteria of our map. This is our north side, right? This is our south side, this is our west side, and this is our east side. The states coming in north sides are located here, the states coming in west sides are located here, the states coming in south side are located here, and the states coming in east sides are located here, right? So if we see the topmost point of India, then in the north the topmost position is of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir comes in the topmost position of our map in India. It is the boundary beyond which our country finishes. इसके बाद हमारी कंट्री फिनिश हो जाती है, और इसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान. तभी आपने देखा होगा there are few conflicts also related to Kashmir and Pakistan. Why? Because Pakistan and Kashmir are the neighboring places. Kashmir is not a country, Pakistan is country. So the border of India finishes at this particular point. Hence we can say that Jammu and Kashmir is the first state which is there at the topmost layer. Okay. In the similar way, if we see in the south direction, then the last place is Tamil Nadu and at the boundary it is Kerala. देखो, अगर आपको कोई कहे कि कोई इसका तरीका है मैप करने का, या आप किसी ट्रिक के थ्रू मैप्स कर सकते हो, नो, देयर इज़ नो एनी ट्रिक ऑफ इट. आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है या व्हाट्स एवर यू वांट टू डू, इट इज़ द बेसिक नॉलेज. आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट कहाँ आते हैं, पहली बात. दूसरी बात, स्टेट्स को लोकेट करने का कोई ट्रिक नहीं होती. आपको इन्हें खुद लोकेट करना होगा, आपको खुद समझना पड़ेगा. और तभी मैंने आपको पहले डायरेक्शन स्केल बताया है. आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, वेस्ट में कौन सी स्टेट है, साउथ में कौन सी स्टेट है, और हमारे ईस्ट में कौन सी स्टेट है. ठीक है. तो लास्ट में हमारे आते हैं तमिलनाडु, ये जम्मू एंड कश्मीर. देन उसके नीचे अगर हम चलते, इट इज़ हिमाचल प्रदेश. आपके पास बोर्ड में या आपके अपने होम बोर्ड्स पे दिए होंगे, इंटरनल्स जिन्हें हम कहते हैं, यू मस्ट गेट द ब्लैंक मैप एंड इन विच यू हैव टू लोकेट डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, कई तरीके होते हैं. देखो, शेडिंग करके भी आप कर सकते हो. आपने यहाँ पे सपोज कोई ब्लू कलर की शेड कर दी और यहाँ पे बॉक्स में लिख दे कैसे ब्लू कलर का शेड का बॉक्स बना दे, वहाँ पे लिख दे दिस बॉक्स डिनोट हिमाचल प्रदेश. थोड़ा ट्रिकी है, आई नो, यू डोंट गेट द टाइम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन,
टू डू कलरिंग एंड ऑल दैट एंड शेडिंग। बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको डिटेल वीडियो आगे भी बता दूंगी। अभी आप इसमें सिर्फ ये देख लीजिए, आपसे पेंसिल से लिख देना HNP। उसके नीचे चलते उत्तराखंड, देन पंजाब एंड हरियाणा एंड दिल्ली। ये जो बेसिकली हमारी ये कंट्रीज़ हैं, ये मेजर नॉर्थ में आती है। इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हो गई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन तजाकिस्तान। इधर की साइड देखें तो चाइना, राइट। अगर हम इससे नीचे चलते हैं तो राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, गोवा तक, ये बेसिकली हमारी है वेस्ट की कंट्री। फिर अगर हम इधर देखें, ईस्ट में आ गया हमारी ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। याद रखना है 4-5 ही मेन है, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ लेते कि अगर आप यूपी में रहते हो तो उसका गाजियाबाद लोकेट करो, इस यूपी में गाजियाबाद क्या है ना। जस्ट द बेसिक स्टेट्स नॉलेज यू मस्ट हैव, राइट। देन अगर हम नीचे चले तो नीचे आ जाता है हमारे तेलंगाना साउथ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। और इनके नेबरिंग कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। और अगर हम यूटी देखें, हमारे यूनियन टेरिटरी, तो लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, ये जो हमारे साइड में है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इस मैप में, बस आप बेसिकली 10-12 स्टेट्स को तो डेफिनेटली कर लो। और अगर आपको एग्जैक्टली ना भी पता हो, ये तो एक डिटेल मैप है क्योंकि ये बुक का है, उसमें अगर आपको इतना ना भी पता हो ना, तो हल्का सा एक मार्क बना देना जिससे पता चल जाए कि ये हमारी रिस्पेक्टिव जगह को बिलोंग करता है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लो, चाहे तो एसएस ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज करना स्टेट्स का। और जैसे कि मैंने कहा था कि स्टेट्स वाले इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू ए बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी मैंने करवा दिया। ये हैशटैग आता है हमारे फर्स्ट नंबर पे। देन हमारा नेक्स्ट है मैप्स की। आपके पास एक एटलस भी होगी, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हर जगह के मैप सेम ही होते हैं, हर बुक के सेम होते हैं क्योंकि जगहें नहीं बदलती हैं, चाहे हमारा ओजी रिवर चल जाए। सेकंड हमारा हैशटैग है रिवर्स ऑन मैप। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि हमारे कौन कौन से रिवर्स कहाँ कहाँ आती है। अगर हम इस मैप को देखें, वही है हमारे इंडिया का मैप, उसमें हमने स्टेट्स बताए थे, इसमें हमने रिवर्स बताए थे। हर स्टेट में कोई ना कोई रिवर होती है जो उसके स्पेशल रिवर होती है, जहाँ से वो कोई कहीं से स्टार्ट होती है, कहीं पे जाके वो ख़त्म होती है, बट हर स्टेट में कोई ना कोई रिवर होती ही होती है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगी, ना ही सारे आप याद कर सकते हो, ना ही आपको सारे करने की नीड है। अगर हम ऑफ कोर्स हमारा वही चलेगा, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, हमारे डायरेक्शंस वही रहेगी। अगर हम नॉर्थ की देखें तो इंडस, ब्यास, ये पंजाब में है। देन हमारी गोविंद सागर, वुलर लेक रहने दो, आप सिर्फ रिवर ही देख लो, तो ये हमारी हो जाती है नॉर्थ की रिवर। अगर हम इधर की साइड देखें, नर्मदा, गोदावरी, तापी एंड ये हमारी बेतवा। बस जिन पे मैं सर्कल कर रही हूँ वही कर लेना। ऑफ कोर्स सॉरी, ये गंगा यमुना छूट गई, गंगा यमुना 100% देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है हमारे इंडिया की। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो आ भी सकता है। देन ये हमारी महानदी एंड यहाँ की ये लेक रहने दो। फिर अगर हम यहाँ के देखें तो ये नागार्जुन सागर। बस जितना भी मैंने सर्कल किया उनका एसएस ले लो, उनको ही एक बार देख लेना। हमारे नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। बस ये ब्यास, गंगा यमुना, मेन गंगा यमुना, बेतवा, नर्मदा, गोदावरी, नागार्जुन सागर और महानदी, ठीक है, इसके एसएस ले लेना। देन हमारी थर्ड है वेजिटेशन वाला आपका चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का, फ्लोरा एंड फौना वाला। उसमें हमें ये कंसीडर करना था, उसमें हमारे वेजिटेशन आते हैं, तो कई बार ये भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे इसमें जो ये डार्क ग्रीन कलर का, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हल्का लाइट ट्रॉपिकल डेसिटिशियस, ग्रीन माउंटेन, उसके बाद मैनग्रोव और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो जैसे लाइट वाला है, ये वाले हो गए माउंटेन फॉरेस्ट। ऐसे भी मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी ना, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मैप्स में, बट ये बोर्ड में पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपल भी कर सकते हो। देन हमारा लाइट ग्रीन है, ये हमारा माउंटेन हो गया।
देन ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये थॉर्न, और ये हो गया हमारा डेसिटिशियस। इन्हें देख लेना एक बार। देन हमारा आखिरी है वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स ऑन मैप्स। ये आपने देखा होगा, ये भी हमारे उसमें था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में। फ्लोरा और फौना होते हैं, जो हमारे फ्लोरा होते हैं वो हमारे प्लांट फ्लावर्स होते हैं, और प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एंड फौना होते हैं हमारे एनिमल्स। ये आजकल हमारे एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मीन्स किसी ना किसी रीज़न की वजह से ये हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है वो ख़त्म हो रहे हैं। अभी तक तो थे है, लेकिन इनके बहुत चांसेस है कि आगे ये होगे ही नहीं। तो इनको हम रिजर्व करते हैं इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें उन फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्शन मिलती है जिनकी स्पीशीज़ या तो ख़त्म होने वाली है या बहुत ही कम बची है। तो कुछ कुछ मैं आपको बता देती हूँ, सारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो बहुत सारी आप थोड़े थोड़े कर लेना, वही रूल वही चलेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का। देन ये हमारा कॉर्बेट कर लेना, एक दुधवा बहुत इम्पोर्टेंट है, शिवपुरी, कान्हा, देन कावल और चंद्रधाका दामरा। बस इनको जिनको मैंने सर्कल करे इतने कर लेना, इसके अलावा वो करने की कोई नीड नहीं है। इसका भी एसेस ले लो ताकि आप रिवाइज कर लो। भाई देखो, करने के लिए तो बहुत चीज़ें होती है, आप करने को तो कितना भी कर सकते हो, बट वो नीड नहीं होती, जो इम्पोर्टेंट है उतने की ही नीड होती है। तो आई होप इस क्लास के बाद आपको ये समझ आया होगा कि हाउ टू लोकेट द थिंग्स ऑन मैप्स। इसके बाहर भी अगर कोई आ जाता है तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। आप अपने डायरेक्शंस याद करना, आपने बचपन से सोशल स्टडीज़ पढ़ी होगी, आपको इतना पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव द आइडिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कौन सी चीज़ कहाँ पे है नहीं, राइट। तो आप इनको करना जारी रखना, और जितने मैंने बताया उनको तो ज़रूरी ध्यान से देख लेना। और अगर कोई इनके आउट आ जाता है एग्ज़ाम में तो ऑफकोर्स छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, उसे अपनी कॉमन सेंस और आईक्यू लगा के ये देखना वो किस डायरेक्शन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. We will meet you soon in our next session. Till then, goodbye and thank you so much.